Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर रिवीजन किया था जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पे था और हम लोगों ने एफ तक कंप्लीट किया था. So this was the last sum which we had done. Today we are going to do G and H. So this will complete the entire chapter. So let's start with G. Divide the following. First question, 5 divided by 2 by 3. 5 divided by 2 by 3. So your division sign gets converted into multiplication sign. So the whole number 5 remains the same. 5 into 2 by 3, reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2. So 5 into 3 by 2. So 5 into 3, numerator multiplied by numerator, and denominator is 1 into 2. So 5 into 3 is 15 upon 2. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 15 है, 2 आउटसाइड एज अ डिवाइजर, 2 7s are 14, 1 remainder. So answer will be 7 1 by 2. 7 is the quotient, 1 is the remainder and 2 is the divisor. So इसका आंसर है 7 1 by 2. Move on to next. Second question. 1 by 8 divided by 18. So fraction multiplied by and whole number divided by a whole number 1 by 8 will remain as it is. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं. 18 इज द होल नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 by 18. सो 1 by 8 इंटू 1 by 18, तो 1 into 1 न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर 1 into 1, 8 into 18. सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इट विल बी 1 by 18 into 8 is 144. तो 1 by 144, तो यहाँ आंसर होगा 1 by 144. ठीक है. मूव टू नेक्स्ट. 12 डिवाइडेड बाय 1 by 6. सो 12 इज द होल नंबर मल्टीप्लाइड, डिवीजन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लिकेशन, तो 1 by 6 का हो जाएगा 6 by 1. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो 12 into 6 है 72. So the answer is 72. Next, फोर्थ में देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस हैं, 5 by 2 and 9 by 2. 5 by 2 divided by 9 by 2. So 5 by 2 remains the same. पहला फ्रैक्शन, यहाँ पे डिवीजन साइन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लिकेशन साइन, और 9 by 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका 2 by 9. तो 2 2 गेट्स कैंसल्ड, 2 1s are 2, 2 1s are 2. 5 और 9 है तो दोनों तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो 5 into 1 न्यूमरेटर में, 1 into 9 डिनोमिनेटर में. तो 5 into 1 is 5, 1 into 9 is 9. So the answer is 5 by 9. Next question. 3 by 2 divided by 1 by 8. तो 3 by 2 remains the same. डिविजन साइन गेट्स कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन साइन, और यहाँ पे 1 by 8 का रेसिप्रोकल होगा 8 by 1. सो 2 1s are 2, 2 4s are 8. सो 3 into 4 is 12. 1 into 1 is 1. सो द आंसर इज 12. नेक्स्ट है 6th. यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन. Mixed fraction 3 1 by 2 divided by 1 by 4. So this mixed fraction has to be converted into improper fraction. तो improper fraction होगा 2 into 3 plus 1 upon 2. 2 into 3 plus 1 upon 2. 2 into 3 is 6. 6 plus 1 is 7. 7 upon 2. तो ये इसका 3 1 by 2 का 7 by 2 improper fraction होगा. And then divide it by 1 by 4. So 7 by 2 divided by 1 by 4. तो 7 by 2 remains the same. 1 by 4 का रेसिप्रोकल होगा 4 by 1. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. 7 into 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 7 into 2 is 14. So the answer is 14. Next 7th.
5 3/2 divided by 3/5. तो convert mixed fraction 5 3/2 improper fraction. तो 2 into 5 plus 3. 2 into 5 plus 3 upon 2. So 2 into 5 is 10 plus 3 13 upon 2. 13 upon 2 divided by 3/5. तो यहाँ पे 13/2 remains the same. डिविजन साइन का मल्टीप्लिकेशन और 3/5 जो रेसिप्रोकल है इसका 5/3 होगा. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो कुछ नहीं होने वाला. तो लेट अस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. 13 into 5 is 65. 2 into 3 is 6. So convert 65/6. This is a improper fraction into a mixed fraction. यहाँ पे देखिएगा 65 डिविडेंड है, 6 इज द डिवाइजर, 6 10s are 60 और 5 इज द रिमाइंडर. सो 10 क्वोशंट है 10, 5 इज द रिमाइंडर 5/6. So the answer is 10 5/6. Move on to next 8th question. Two mixed fractions 30 1/2, 6 1/4. 30 1/2 divided by 6 1/4. Convert both of them into improper fractions. 30 1/2 का होगा 2 into 30 plus 1, that is 60 plus 1 61/2, and 4 into 6 plus 1. 4 into 6 is 24 plus 1 is 25 upon 4. तो दोनों का improper fractions मिल गए हैं. तो हम लोगों को डिवाइड करना है. 61/2 divided by 25/4. So 61/2 remains the same. First fraction. Division sign gets converted into multiplication sign. 25/4 का होगा 4/25. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो 61 into 2 upon 1 into 25. That is equal to 61 into 2 is 2 into 1 is 2, 2 6 are 12. तो 122 होगा और upon 25 because 25 into 1 is 25. तो इसका मिक्स फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. तो 25 इज द डिवाइजर, 122 इज द डिविडेंड. तो 122 है तो 25 सेकेंड 1 नंबर 2 नंबर नहीं ले सकते, तीनों नंबर एक साथ लेना पड़ेगा. सो 25 into 4 इज 100, 25 into 5 इज 125. 125 बड़ा हो जाता है तो 25 into 4 इज 100, रिमाइंडर इज 22. सो द आंसर इज 4/22 upon 25. ठीक है. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन 3.5 डिवाइडेड बाय 7. तो 3.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 35/10 होगा. ठीक है. 35/10 डिवाइडेड बाय 7. तो 35/10 इंटू ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और 7 का जो रेसिप्रोकल है 1/7 होगा. तो 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो रिमाइंडर है जो आंसर सोल्यूशन है 1 into 1 upon 2 into 1. तो आंसर इज 1/2 और 1/2 यानी डेसिमल में 0.5. ठीक है. तो ये हो गया 9th क्वेश्चन खत्म. अगला है 10th क्वेश्चन. देखिएगा 10th क्वेश्चन है 9.5 डिवाइडेड बाय 10. तो 9.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. तो क्या होगा होल नंबर में 95/10 डिवाइडेड बाय 10. तो 95/10 रिमेन्स द सेम इंटू 10 का जो रेसिप्रोकल है 1/10 होगा. तो 95 इंटू यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 और 10 है, मल्टीपल्स ऑफ 10 है ना, तो लेट अस कीप द मल्टीपल्स ऑफ 10 एज इट इज. सो 95 into 1 is 95, 10 into 10 is 100. तो 95/100 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा न्यूमरेटर में 10 100th पोजिशन पे डेसिमल पॉइंट आएगा तो 0.95. ठीक है. तो आंसर इज 0.95. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन 78 डिवाइडेड बाय 6.5.
78 डिवाइडेड बाई 6.5, यहाँ पे 6.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो होल नंबर क्या होगा, 65/10 होगा। 78 डिवीजन साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, और यहाँ का जो 65/10 जो है उसका रेसिप्रोकल होगा 10/65। तो यहाँ पे क्या है, 10 है, 65 है, 5 के टेबल में जाता है तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 15 होगा, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे 13 1 ज़ा 13 और 13 6 ज़ा 78। तो 6 और 2 रहता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1, तो 6 into 2 is 12. So the answer is 12. Next, 12th question. 100 divided by 0.25. 100 divided by 0.25 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में तो 25/100 होगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 25/100, क्योंकि 0.25 को हम लोगों ने होल नंबर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे डिवीजन साइन है तो वो मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होगा। तो 100 इंटू यहाँ का जो रेसिप्रोकल है 25/100 का 100/25 होगा। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो 100 इंटू 4 इज 400। सो द आंसर विल बी 400। ठीक है। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। लिखिएगा 13th क्वेश्चन। 8.125 डिवाइडेड बाय 2.5। तो 8.125 को कन्वर्ट करना है होल नंबर में तो क्या होगा, 8125 अपॉन ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 1000 प्लेस पे है, अपॉन 1000 होगा, और डिवीजन साइन यहाँ पे, और 2.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 25/10 होगा। तो व्हाट वी विल डू है सिंप्लीफिकेशन फर्दर। 8125 अपॉन 1000, दिस डिवीजन साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, एंड 25/10 का रेसिप्रोकल जो है वो 10/25। सो 1 0 गेट्स कैंसल्ड, 100 यहाँ पे और 25 यहाँ पे रहता है। ये 8125 सिंस इट 5 इज इन द वंस प्लेस सो इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 यहाँ पे रहता है 31 होता है, 5 6 ज़ा 30, अगेन 1 12, 5 2 ज़ा 10, अगेन 2, सो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और फर्दर क्या होगा, फर्दर होगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1625 है, तो उसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज 5 है वंस प्लेस पे। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। सो 5 2 ज़ा 10 और 2 यहाँ पे रहेगा तो 5 5 ज़ा 25। सो 325 इंटू 1 होता है और डिनोमिनेटर में 100 इंटू 1, तो 325 अपॉन 100, यानी अभी 100th प्लेस पे हमारा डेसिमल पॉइंट जाएगा। न्यूमरेटर के जो भी नंबर है उसमें 100th प्लेस पे डेसिमल पॉइंट जाएगा, तो इट विल बी 3.25। सो द आंसर इज 3.25। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th क्वेश्चन। 6.2 divided by 3.10. Convert both of the decimal numbers into whole numbers. 62 upon 10 divided by 3.10 जो है 310 upon 100 हो जाएगा, because the decimal point is placed at the 100th place. So 310 upon 100. 0 0 gets cancelled, यहाँ पे हो जाता है, नहीं यहाँ पे कैंसिल होगा तो पहले हम लोगों को इसको डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनीवेज 62 अपॉन 10 इंटू 100, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 100 अपॉन 310, तो ये कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे एक और 0 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 0 गेट्स कैंसिल, 31 यहाँ पे रह जाएगा, 62 यहाँ पे रहेगा, तो 31 है, 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा 62। सो द आंसर जो रहता है वो है न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 अपॉन 1, सो द आंसर विल बी 2। ठीक है, 14th क्वेश्चन का आंसर होगा 2। अभी 15th में जाते हैं। 15th का क्वेश्चन है 31.5 डिवाइडेड बाय 1.5। 31.5 होल नंबर कन्वर्ट करते हैं इसको, 1.5 को भी होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो 31.5 का क्या होगा, 31
315/10 डिवाइडेड बाय 15/10. तो यहाँ पे 315/10 रिमेज द सेम. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया. 15/10 को 10/15. रेसिप्रोकल ऑफ 15/10 इज 10/15. 10 गेट्स कैंसल्ड. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 1 5 है, तो 5 का मल्टीपल होगा. 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 63 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 21 आ जाएगा. तो न्यूमरेटर में है 21 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1. सो द आंसर इज 21. ये हो गया 15th क्वेश्चन. अगला है 16th क्वेश्चन. 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1. 4.2 को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. 42/10 डिवाइडेड बाय 2.1 को 21/10. तो 42/10 जो डिवीजन साइन वो कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 21/10 रेसिप्रोकल इसका 10/21. सो 42/10 इंटू 10/21. 10 गेट्स कैंसिल, और 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42. तो न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 अपॉन 1. सो द आंसर इज 2. ठीक है, तो इससे जी क्वेश्चंस खत्म होते हैं. नेक्स्ट इज एच. एच में है वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है. जैकब टेक्स 1/3 minutes to read a paragraph. How long will he take to read 5 paragraphs? तो एक पैराग्राफ रीड करने के लिए वो कितना टाइम लेते हैं? 1/3 minutes. तो ऐसे 5 पैराग्राफ्स रीड करना है, तो कितना टाइम होगा? इसको मल्टीप्लाई करना है. 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना टाइम वो 5 पैराग्राफ पढ़ने में लेते हैं. सो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले. टाइम टेकन टू रीड 1 पैराग्राफ इज इक्वल टू 1/3 minutes. और टाइम टेकन टू रीड 5 पैराग्राफ्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1/3. सो 5 इंटू 1 जो न्यूमरेटर में 5 इंटू 1 है, डिनोमिनेटर में 3. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. सो 5 इंटू 1 5 अपॉन 3 minutes. सो 5/3 minutes लेते हैं 5 पैराग्राफ पढ़ने के लिए. ठीक है, देयरफॉर टाइम टेकन टू रीड 5 पैराग्राफ्स इज 5/3 minutes. तो इससे पहला वर्ड क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है. लेट अस रीड आउट व्हाट इज देयर इन द सेकेंड क्वेश्चन. अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैज 5/4 calories of energy. How many calories of energy will 6 such packets have? इसका मतलब ये यह है कि एक पैकेट जो है उसका कैलोरीज कितना है? 5/4 कैलोरीज. तो ऐसे 6 पैकेट्स के कितने कैलोरीज हो जाएंगे, ऐसा पूछा गया है. तो इसको क्या करेंगे, हम लोगों को एक का 5/4 दिया है, तो 6 का क्या होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, कैलोरीज इसका स्टेटमेंट लिखते हैं. कैलोरीज इन 1 पैकेट ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू 5/4 कैलोरीज. कैलोरीज इन 6 पैकेट्स ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 6. तो 5/4 इंटू 6 को, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 है. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. सो 5 इंटू 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2. सो 5 इंटू 3 इज 15, डिनोमिनेटर 2. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है देखते हैं. 2 है डिवाइजर, 15 इज द डिविडेंड. सो 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर इज 1. तो 7 इज द क्वोशंट, 1/2. 7 1/2 कैलोरीज आ जाएगा. आंसर है 7 1/2 कैलोरीज. ठीक है, therefore the total calories in 6 packets of biscuits will be 7.5 calories. ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा. 7.5 कैलोरीज. लास्ट नहीं है, थर्ड है ये. थर्ड क्वेश्चन. देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द फ्रैक्शन 4/3 टू गेट 5/3? यानी कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 को जिससे हमें 5/3 मिलेगा. तो हम लोग एक अननोन लेते हैं, जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x. लेट्स टेक इट एज x. लेट द अननोन फ्रैक्शन बी x.
हम लोगों को मालूम नहीं है क्या है वो। सो 4/3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को क्या मिला 5/3। तो अभी क्या करेंगे, x तो यहाँ पे रहेगा जो अननोन है ना, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो x यहीं पे रहेगा और 4/3 को इस साइड में लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। तो 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3, 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3, जब डिवीजन करेंगे ना तो क्या होता है, रेसिप्रोकल आ जाता है। तो 5/3 इंटू 3/4 होगा, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और उसके बाद रेसिप्रोकल आएगा 3/4, ऐसे कि जैसे हम लोग करते हैं ना 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो क्या होगा 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3, 5/3 तो ऐसे ही रहेगा, 4/3 का रेसिप्रोकल क्या है 3/4, सो मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 3 गेट्स कैंसल्ड, 5 इंटू 1 5, 3 1 इंटू 4 इज 4, तो 5/4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5/4। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो द अननोन फ्रैक्शन जो है वो है 5/4, यानी कि 4/3 को अगर हम लोग 5/4 में मल्टीप्लाई किया ना तो 5/3 आंसर आएगा। यहाँ पे देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। 4 इज अ डिवाइजर, 5 इज अ डिविडेंड, 4 1 जा 4, तो एक रिमाइंडर है तो 1/4 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा ही 5/4 भी रख सकते हो। Therefore the fraction is 5/4 or 1/4 to be multiplied to 4/3 in order to get 5/3, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है, वेरीफाई करना है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। 4/3 इंटू 5/4, 4 gets cancelled, तो आंसर इज 5/3, यानी कि 5/3 आंसर आता है। सो इसके साथ थर्ड क्वेश्चन खत्म। मूव ऑन टू नेक्स्ट, द फोर्थ वन। लेट्स चेक व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सेज Lucas reads 2.5 hours per day. How many hours does he spend reading in a week? एक दिन में 2.5 घंटा 2.5 आवर्स पढ़ते हैं, तो एक वीक में कितना आवर्स पढ़ते हैं, यानी कि एक वीक यानी कितने दिन, 7 दिन। तो हम लोगों को 7 दिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5, इससे पता चलेगा वो कितना आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स स्टेटमेंट फर्स्ट है, नंबर ऑफ आवर्स लूकस रीड्स इन अ डे, दैट इज इक्वल टू 2.5 आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स लूकस रीड इन अ वीक, और वीक मतलब क्या होता है 7 डेज, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। 2.5 को होल नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा, 25/10 होगा, इंटू 7। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं क्योंकि 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 को वैसे ही रख देते हैं डिनोमिनेटर में। सो 25 इंटू 7 इज 175, यहाँ पे किया हुआ है। 7 5 35, 7 2 14, 14 प्लस 3 इज 17, तो 175/10 आ जाएगा। तो 175/10 यानी 10 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में 10th पोजिशन पे हम लोगों को डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। सो लेट अस प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट द 10th प्लेस एंड वी आर गोइंग टू गेट 17.5 hours. Therefore the total number of hours Lucas spent in reading is equal to 17.5 hours. Okay, this was the fourth question. Move on to fifth question. Fifth question को देखते हैं। Mia spends ₹12.25 for 1 kg of dal. How much will she spend on 3.5 kg of dal? तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ दाल दिया हुआ है, दैट इज ₹12.25। तो हम लोगों को देखना है कि वो 3.5 kg को कितना स्पेंड करती है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ दाल इज इक्वल टू ₹12.25।
कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ दाल इज इक्वल टू 12.5 इंटू 3.5, इतना मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लोगों को आ जाएगा कि इतना स्पेंड करती है वो 3.5 kg दाल लेने के लिए। होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। 12.25 को 12.25 का होल नंबर होगा 1225 अपॉन 100 और यहाँ पे 3.5 का 35/10। तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको टच नहीं करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 10 है तो 100 इंटू 10 इज़ 1000 और 1225 इंटू 35 यहाँ पे किया हुआ है। 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 2 10, 12 यानी 1 रहेगा तो 11 आ जाएगा। 5 1 5, 6 6 1 2 5, 5 15, 3 2 6, 7, 3 2 6, 6 आएगा, 3 1 3। सो इन दोनों को ऐड करते हैं। 5 आएगा, 7, 2 + 5 इज 7, 7 + 1 इज 8, 6 + 6 इज 12, 1 यहाँ पे, 3 + 1 इज 4। तो आंसर इज 42,875। सो 42,875 अपॉन 1000। ठीक है, तो 1000 प्लेस पे जो है डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। सो लेट अस प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट द 1000 प्लेस। तो क्या होगा, 42.875. So the answer is 42.875. That means cost of 3.5 kg of dal is rupees 42.875. ठीक है, move on to next. 6th question, ये लास्ट क्वेश्चन है। If 4132.2 kg of sugar is packed in 97 bags, then how much sugar will each bag contain? मतलब टोटल जो शुगर है 4132.2 kg है जो 97 बैग्स में पैक किया है। तो वो बोल रहे हैं कि एक बैग में कितना शुगर है, कितनी चीनी है। तो शुगर पैक्ड इन 97 बैग्स इज इक्वल टू 4132.2 kg। देयरफॉर शुगर पैक्ड इन 1 बैग इज इक्वल टू, इसको हम लोगों को डिवाइड करेंगे ना 97, तो हम लोगों को नंबर ऑफ बैग्स, कितना चीनी एक बैग में भरा हुआ है ये पता चलेगा। ठीक है, तो 4132.2 डिवाइडेड बाय 97, तो ठीक है, कितना केजी शुगर हम लोगों ने एक बैग में, उन्होंने एक बैग में पैक किया ये पता करना है। तो डिवाइड करेंगे। सो 4132.2 डिवाइडेड बाय 97। तो इसको हम लोगों को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 4132 अपॉन 10, क्योंकि 10th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 97। इसको तो कुछ टच करना नहीं है, तो अभी डिवाइड करते हैं। 41322 अपॉन 10 इंटू इसका रेसिप्रोकल, सो दैट विल बी 1/97। अब देखिएगा ना, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 41322 है, तो 2 का इवन नंबर है ना वंस प्लेस पे, तो 2 में ज़रूर जाएगा। यहाँ पे 10 है ना, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 1 रहेगा, 2 6 ज़ा 12, एक यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। सो कितना आएगा, 2 इंटू 20,661 इज इक्वल टू 41,322। ठीक है, तो उसको ऐसे ही फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 20,661 इंटू 1 होगा और डिनोमिनेटर में होगा 5 इंटू 97। दैट इज 5 इंटू 97 का होता है 5 7 ज़ा, यहाँ पे किया हुआ है 97 इंटू 5, 5 7 ज़ा 35, 9 5 ज़ा 45, 46, 47, 48, 485 होता है, 485। तो 20,661 अपॉन 485, तो इसका हम लोगों को अभी डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 485 है, 20,661 है, तो ये 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे तो कम होगा, तो 4 डिजिट लेते हैं। तो 4 4 ज़ा 16 है, 4 5 ज़ा 20 ले सकते हैं, पर क्या है कि ये 85 इज़ अ बिग नंबर, सो इट विल बी मोर देन 2000, सो कम लेते हैं। 4 4 ज़ा 16,
4 5 ज़ा 20 होगा, 4 8 ज़ा 32 33 34, 4 4 ज़ा 16 17 18 19, तो 1940 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा, 2 20 माइनस 19 इज़ 1, तो 1261 आएगा। ब्रिंग डाउन 1 ईयर, तो 1261 आएगा। 1261 यानी यहाँ पे अगर 3 लेंगे ना, 4 3 ज़ा 12 होगा, पर 85 इज अगेन अ बिग नंबर, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 85 से और बड़ा नंबर होगा। सो विल टेक 2 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 17, 2 4 ज़ा 8 9, तो 970 आता है। तो 1261 माइनस 970, 1 माइनस 0 इज़ 1, 16 माइनस 7 इज़ 9, क्योंकि यहाँ से बोरो किया ना, तो 11 माइनस 9 इज़ 2, 2911 आएगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं, तो 0 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 0 ऐड करने के बाद ये जाता है 6 से, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48 49 50 51, 5 यहाँ पे 1 आएगा, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 5 29, सो 2910 एंड एग्जैक्टली जाता है। सो द आंसर इज 42.6, यहाँ पे आएगा 42.6 kg, यानी कि शुगर जो पैक किया है एक बैग में वो 42.6 kg। लास्ट स्टेटमेंट है, देयरफॉर शुगर पैक्ड इन 1 बैग इज इक्वल टू 42.6 kg। इसके साथ हमारा जो चैप्टर रिवीजन है फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पे वो ख़त्म हो जाता है। तो अगला चैप्टर हम लोग रैशनल जो है वो स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स पे। तो मेरा अगला वीडियो आप मिस मत कीजिएगा जो रैशनल्स पे होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Until the next video, bye and take care. Thank you so much.